Very good morning, students. So, today we are going to read lesson 12 of our textbook, that is the pie and the tart. Okay, in last video we have completed lesson 10 from our book, right? And lesson 11, that is a poem, वो हमारा कोर्स रिडक्शन में उसे हटा दिया गया है, तो उसे रिड्यूस कर दिया गया है फ्रॉम योर कोर्स, राइट? तो आज हम जो है we are going to start this this lesson 12, right? So this is a play. Actually, it is written by Hughes Chesterman, and it is a humorous play, right? And यहाँ पर आपके जो मेन कैरेक्टर्स हैं, they are Pierre and Jean, right? They are the thugs from Paris, right? And when the play goes on acting, they are supposed to be hungry and cold, right? वो भूखे भी हैं और उन्हें ठंड भी फील हो रहा है, एंड देन दे मेक प्लान. सो इस जब वो प्लान बनाते हैं, then we'll meet two other characters, Gaultier and Marion. So Gaultier is a cake shop owner and Marion is his wife. Okay, so they are quite clever. Jean and Pierre जो है, they are thugs and as well as they are the vagabonds, right? उनके पास कोई काम नहीं है, so they just move on from here to there aimlessly, right? And यहाँ पर हम जो प्ले देखेंगे, सो वहाँ we'll find that कि they are quite clever and they firstly manage to get the pie from the couple and later on वो टार्ट भी उनसे लेने में सक्सीड हो जाते हैं. Okay, however they got threats also, but finally they just succeed in getting both of the things. Okay, so let's start. And I have told you that's a play, so यहाँ पर आपको how to look, appearance कैसा होगा आपके स्टेज का, ये भी दिया हुआ है. So see, the scene is laid outside Gaultier's cake shop in Paris. The time is middle of 15th century. The act could be played on a curtained stage with one door, back center. The only furniture is a bench, right? Jean and Pierre are discovered like former seated on a bench in an attitude of extreme dejection, the latter pacing up and down, blowing on his fingers. Both must indicate that they are cold and hungry. So हमारा प्ले जो है वो एक कर्टेन्ड स्टेज पर तय कर सकते हैं. ओके, बैक में एक डोर होगा, राइट साइड पर एक बेंच होगा, दैट इज़ द ओनली फर्नीचर जहाँ पर जीन एंड प्यारे ऑलरेडी होंगे, एंड वन ऑफ दैम इज सिटेड ऑन द बेंच, और प्यारे जो है दैट इज़ मूविंग फ्रॉम हियर टू देयर, यहाँ वहाँ जो है वो टहल रहा है. ओके, एंड अपनी फिंगर्स को ब्लो भी कर रहा है, एंड कि फेस का लुक, एक्सप्रेशन मस्ट बी लाइक दैट कि दे आर फीलिंग वेरी hungry and also they are feeling quite cold, right? So let's see what they talk. Jean, regarding Pierre's restless pacing, you must keep doing that. It's blasted cold. If I stop walking, I shall freeze. I'm dying of hunger and cold. So am I, but I prefer to die sitting down. Okay, so Jean जो है, पियरे क्योंकि बार बार यहाँ से वहाँ जा रहा है, उसकी रेस्टलेस पेसिंग को देख कर के जीन से कि क्या तुम इसे बंद कर सकते हो, एंड ही सेड कि द कोल्ड इज़ ब्लास्टेड, अगर मैं रुकूंगा तो मैं फ्रीज़ हो जाऊंगा, और मुझे जो है आई एम फीलिंग सो हंग्री एंड सो मच कोल्ड कि मुझे लग रहा है कि मैं दोनों से मर जाऊंगा. एंड ही सेड, जीन सेड कि मैं, मेरे साथ भी सिमिलर ही है, बट आई प्रेफर कि मैं बैठे बैठे ही जो है वो अपनी जान दे दूँ.
Pierre, we make a pretty pair, you and I. Paris should be proud of us, displaying his rugs. There are 23 holes in this tunic. I know because I counted them this morning. That's only reckoning the ones that let the wind through. No doubt there are others, they but left the pass. Okay, so पेरिस सेट कि हमारा बड़ा प्रिटी पेयर है, बड़ा अच्छा सा पेयर है, एंड पेरिस को हम पर बड़ा प्राउड होता होगा. एक्चुअली ही इज़ इन एंगर, राइट, एंड ही सोल्ड हिज रेक्स. अपने कपड़े उसने दिखा करके कहा, देखो ये जो मेरी ट्यूनिक है इसमें 23 होल्स हैं. ओके, और मुझे कैसे पता है? क्योंकि मैंने उनको काउंट किया है सुबह. ओके, और ये एक रेकनिंग है, रफ काउंटिंग है उन होल्स की जिसमें से विंड पास होता है. और डाउट नहीं है कि और भी ज़्यादा होंगे, लेकिन मैंने उन्हें ऐसे काउंट नहीं किया है. ठीक है. द होल्स इन योर ट्यूनिक डोंट इंटरेस्ट मी. What I am concerned about is the hollow in my stomach. We must live and without a meal. So he said कि तुम्हारे ट्यूनिक में कितना होल है, आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट. मैं जिस चीज़ के लिए इंटरेस्टेड हूँ, कंसर्न हूँ, वो क्या है? हॉलो इन माई स्टमक. जो मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मैं उसके बारे में जो हूँ कंसर्न हूँ. और हमें जो है जिंदा भी रहना है. वी शुड लिव विदाउट अ मील. दैट्स व्हाट आई सेड जज गेस्टन व्हेन आई पिंच्ड लास्ट मंथ फॉर बैगिंग. सो पियरे सेड कि यही तो मैंने कहा था उस जज गेस्टन को, जब मुझे पिंच किया गया था बैगिंग के लिए, राइट. सो सेड व्हाट. जीन ने पूछा कि एक्चुअली क्या कहा था तुमने. He asked me why I did it, and I said, well, Your Honor, I must live. And he looked me up and down and said, I really don't see the necessity. So Pierre said कि मैंने उससे कहा था कि Your Honor, मुझे जिंदा रहने के लिए करना पड़ता है. What he said about begging जो वो कर रहा था. Okay, so begging is just like crime for some places, right? और ये दोनों तो लुक वाइज काफ़ी ठीक दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उसने मेंशन किया है कि जब मैंने ऐसे कहा दैट योर ऑनर आई मस्ट लिव, इसीलिए मैं बैगिंग कर रहा था. एंड ही सेड कि जज ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, एंड उसके बाद उसने कहा कि लिख कर लगता तो नहीं है कि ऐसी कुछ ज़रूरत है, राइट. मतलब उनका बिल्ट जो था वो काफ़ी अच्छा था, बट दे नेवर प्रोफर टू वर्क, राइट. उनको जो है वर्क करना पसंद नहीं था. दे जस्ट कीप ऑन डूइंग सच थिंग जहाँ पर उन्हें हार्ड वर्क ना करना पड़े. जीन अवेक द जज. So he said, yes, the judge is quite clever and amusing also. Pierre, he didn't know what it was to be hungry. See here, my pretty, this can't go on. I'm going to knock on every door in the street, and since charity begins at home, I shall begin right here, indicating the cake shop. You had better not be seen. Go into the next street and try your luck there. Jean begins to go, but Pierre calls him back. Wait a minute, brother. Let's hear what you can do. Okay? So he said कि नहीं, ऐसा तो नहीं चलेगा, और ज़्यादा हंग्री हम नहीं रह सकते. एंड ही ऑल्सो मैंशन कि जज को पता ही नहीं होगा कि भूखा होना एक्चुअली क्या होता है. ठीक है. एंड ही सेड कि ये नहीं चलेगा, तो मैं जा रहा हूँ और स्ट्रीट के सारे घर पर नॉक करूँगा. ठीक है. और क्योंकि चैरिटी बिगन होती है अपने खुद के घर से, तो मैं सबसे पहले जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है उसी हाउस पर जा कर के मैं नॉक करने वाला हूँ उसके डोर पर. ओके. एंड ही सेड तो चीन कि यहाँ पर तुम मत दिखाई देना, तुम दूसरे स्ट्रीट में जाओ, वहाँ पर अपना लक ट्राई करो. जैसे ही वो जाने लगता है, ही कॉल्स बैक. इसे इसकी रुको, हम पहले एक प्रैक्टिस कर ले कि क्या करना है हमें. Jean knocks on the bench and assumes a mendicant voice and attitude. Okay, और उसके बाद जीन जो है वो बेंच को नॉक करके, जैसे डोर पर उसने नॉक किया है, एंड उसके बाद अज्यूम करता है अपनी वॉइस को, एक मेंडिकेंट और एटीट्यूड भी उसका
डिफरेंट हो जाता है. एंड वॉट ही डज, ही सेज, फॉर द लव ऑफ सेंट अगाथा एंड ऑल द ब्लेस्ड सन्स, have pity on a poor miserable who has had no food for 3 days. How's that? वो एक्चुअली कैसे लोगों से उनको मांगना है ये दिखा रहा है. दे आर गोइंग टू बैग, राइट. सो ही सेड कि हम कहेंगे कि सारे संत महात्माओं के नाम पर दया करो एंड इस मिजरेबल पर्सन को कुछ खाने दे दीजिए, बिकॉज उसने कितने देर से 3 डेज से कुछ भी नहीं खाया है. एंड आज की कैसा रहा? प्यारे सेट, नॉट बैड बट मेक इट 7 days and squint slightly. It's your sign of starvation. कि उसके कहता है प्यारे सेज कि इट्स नॉट बैड बट 3 days की जगह बोलो 7 days से, और थोड़ा स्क्वेंट हो, थोड़ा सा काँपो. ओके. एंड ये साइन होता है कि आपने बहुत दिनों से कुछ भी नहीं खाया है. ये बिल्कुल भूख का साइन होता है. ठीक है. एंड जस्ट he goes. Pierre, knocking at the cake shop door, arms, good sir, for the love of God and all his blessed angels, take pity on a poor traveler who has had no food for a week. Okay, so वो एक सामने वाले शॉप पर ही जाता है पियरे, एंड वहाँ पर जा कर के अपनी जो उसने प्रैक्टिस किया होता है, he speaks like that. एंड वहाँ पर मिस्टर गॉल्टियर कम्स टू डोर. ही इज़ अ मैन ऑफ अबाउट 50, वेल प्रिजर्व्ड एंड ऑब्वियसली कंटेंट विथ हिज लॉट. सो मिस्टर गॉल्टियर निकले वहाँ से, जो कि अबाउट 50 ईयर्स के हैं. लुक्स काफ़ी अच्छे हैं एंड उनके फेस से एक्सप्रेशन आता है कि ही इज़ क्वाइट कंटेंट विद वट एवर ही हैड, राइट. Gaultier, go away. I have got nothing for you. My wife is away and I am busy. You'd better go to the next street. So Gaultier कहता है कि मेरे पास कुछ भी नहीं है देने को, मेरी वाइफ भी घर पर नहीं है, मैं खुद भी बिजी हूँ. सो अच्छा है कि तुम नेक्स्ट स्ट्रीट पर जाओ. Gaultier slams the door, और उसके मुँह पर ही डोर को वो बंद कर देता है. Exit Pierre, enter Jean. ओके. सो एग्जिट राइट साइड से होता है प्यारे का, और जीन एंटर करता है लेफ्ट साइड से. ही लुक्स एट द डोर, हेजिटेट्स एंड देन नॉक्स. ओके. अभी फॉर द लव ऑफ सेंट गाथा एंड सेंट निकोलस, सेंट क्रिस्पिन एंड ऑल द ब्लेस्ड कंपनी ऑफ हेवन, हैव पिटी ऑन पुअर मिसरेबल हु हैज़ हैड नो फूड फॉर 7 days. ओके. तो वहाँ पर अभी जो डोर ओपन कर रही है जीन के लिए, इससे पहले गॉल्टियर ने पियरे के लिए ओपन किया था. सो जब डोर ओपन होता है देन वहाँ पर मैरियन, जो कि गॉल्टियर की वाइफ है, वो निकल कर आती है. एंड शी इज़ यंगर देन हर हस्बैंड. उसको देख कर के पता चलता है कि वो क्या है, अपने हस्बैंड से यंगर है, स्टाउटिस है एंड कमली भी है, राइट. सो लेट्स सी कि व्हाट शी सेज. Go away, beggar. My husband is out and I have nothing for you. You'd better call again when he comes back. So she says कि मेरे हस्बैंड अभी नहीं है, अभी जाओ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, जब वो आएंगे तब वापस आना, एंड देन उसके बाद शायद तुमको कुछ मिल जाए, राइट. Marion shuts the door. Jean sits disconsolately on the bench. Presently, Gaultier comes out of the shop. He makes as if to go out, right, but remembers something and goes back towards the shop. Marion appears at the door. So Marion शट कर लेती है, तब जीन जो है वो डिसअपॉइंटिंग वे में बैठ जाता है बेंच पर. तब भी गॉल्टियर आते हैं एंड ऐसे लग रहा है जैसे वो कहीं जा रहा है कि लेकिन तभी उसे लगता है कुछ याद आया एंड ही गोज़ टूवर्ड्स द शॉप बैक. वापस जाता है एंड वहाँ पर मैरियन भी उसे दिखाई दे रही है. मैरियन, I am just off to dine with the mayor. He keeps none too good a table. I'm thinking that I would better take that eel pie with me, that big one that I made last Monday. Just get it for me. Hurry, I must not be late.
ओके सो गाल्टियर मैरियन से कहते कि मैं मेयर के पास साथ खाना खाने जा रहा हूँ। कभी इतना अच्छा वो सबके साथ नहीं होते हैं, मीन्स इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी, इट्स अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर मी एंड आई थिंक कि मैं जाऊँ तो साथ में ईल पाए लेकर के जाऊँ, वो बड़ी वाली ईल पाए जो मैंने लास्ट मंडे बनाया था। एंड ही से इसकी जल्दी करो क्योंकि मुझे लेट नहीं होना चाहिए। वेरी गुड हस्बैंड, शी गोज़ बैक इन टू द शॉप बट Gaultier कॉल्स हर बैक। सो वो कहती है ठीक है, एंड जैसे ही वो लेने जाती है Gaultier उसे वापस बुलाता है। एंड सी वाई, वेट आई कांट वेरी वेल be seen carrying an eel pie through the streets of Paris, can I? Not quite the thing for a man of my position. Do you think you could bring it along after me? So he said कि अरे मैं ईल पाई लेकर के पेरिस की गलियों पर जाऊँ, ये तो ठीक नहीं लगेगा, राइट। एंड ही सेज कि मेरी जैसी पोजीशन के पर्सन को ऐसा करना ठीक नहीं लगता है। एंड क्या तुम मेरे लिए ये ईल पाई मेरे बाद लेकर के आओगे? मैरियन सेड क्वाइट इम्पॉसिबल, बिल्कुल भी नहीं। इसके वाइफ बोलती है आई हैव टू मच टू डू टू रन एरेंड्स, वाई नॉट सेंड समवन बैक फॉर इट। सी सेड कि मेरे पास भी बहुत सारे वर्क्स हैं एंड काम करो किसी को भेज दो, आई थिंक इट विल बी बेटर, राइट। Gaultier, a good idea, but who? So he said कि आइडिया तो अच्छा है बट किसे भेजा जाए? Well, you'll be bound to meet someone on the way. So Marion suggested an idea कि कोई भी जो मिल रहा है रास्ते में उसे भेज सकते हो। Yes, but how will you know if he is the right one? Anyone might just come and say they had been sent. So Gaultier बोलता है कि ठीक है, लेकिन कैसे पता चलेगा कि वही है? क्योंकि कोई भी अगर बोल देगा दैट ही इज़ द मैसेंजर एंड क्या करेंगे? I had thought of idea. I hadn't thought of that. So मैंने सेट कि नो, मैंने इतना नहीं सोचा है। Gaultier, I have it. I'll tell the messenger when I have found him to kiss your hand. That will be the sign, and then you'll know that everything is all right. Marion, laughing, well, choose a good-looking one. Clearly, Madame Gaultier's hand is not for everyone to kiss. ओके सो वो बोलता है कौन? Gaultier कि मेरे पास एक आइडिया है एंड ही सेज कि जो भी मेरा मैसेंजर होगा वो साइन करेगा दैट इज़ गोइंग टू किस योर हैंड। ठीक है, तो वो आपके हैंड पर किस करेगा एंड उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि वो मेरा मैसेंजर है, राइट। एंड ही सेज कि वन ही सेज कि इस तरह का एक्ट होगा, देन मैरियन लव्स एंड सेज कि एक अच्छा सा पर्सन चूज़ करना, ओके, क्योंकि मेरा हाथ हर किसी को देने के लिए नहीं है। मैरियन रिटर्न्स टू शॉप, Gaultier exits right. Jean, who has overheard all the foregoing, sits pondering, presently enter Pierre from left. So इसके बाद मैरियन जो है वो स्टेज से शॉप के एंटर करने को एक्ट करती है। Gaultier वहाँ से राइट साइड मूव हो जाता है। जीन वहीं पर बेंच में बैठा हुआ था, सो उसने सब कुछ सुन लिया है, ओके। एंड वो इज थिंकिंग ओवर समथिंग, राइट। एंड तभी पियरे जो है वो एंटर करता है। एनी लक? यस, यस एंड नो। व्हाट डज दैट मीन? सो जब उससे पूछा गया जीन से कि कोई लक यानी कुछ मिला क्या, सो ही सेड कि यस एंड नो बोथ। एंड पियरे आस्क्ड व्हाट डज इट मीन, कि इसका मतलब क्या है एक्चुअली। जीन सेज आफ्टर पॉज, लुक हियर, आर यू रेडी टू डू एग्जैक्टली एज आई टेल यू एंड नो क्वेश्चंस आस्क्ड? सो जीन सेड टू हिम कि पहले ये बताओ क्या ऐसा पॉसिबल है कि मैं जो तुमको बोलूँ बिल्कुल वैसा ही करो और मुझसे कोई क्वेश्चन पूछो मत। Pierre, I'll do anything to keep my stomach quiet. Very well. Now listen, I am going into the next street. Directly I'm gone. Go up to the door
knock on it and say, okay, so उसने कहा कि मैं अपने हॉलो स्टमक के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। एंड जीन सेड कि ठीक है, तो मैं जा रहा हूँ यहाँ से, और जैसे ही मैं जाऊँ उसके बाद तुम नॉक करोगे डोर को। एंड इसने प्यारे ने बीच में इंटरप्ट किया कि थैंक्स, आई हैव बीन देयर वंस टुडे ऑलरेडी, आई हैव गॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड, मिमिकिंग मिस्टर Galtier's pompous manner. Go away, beggar. Go away. I am busy. Go into the next street. Bah. So वो एक्चुअली उसको डिसअपॉइंटमेंट मिला था यहाँ से, राइट। उसे कुछ भी मिला नहीं था, तो उसने क्या कहा कि मैं यहाँ आ चुका हूँ ऑलरेडी और मुझे जो सोच रहा था वही मिला। एंड उसके बाद वो गॉल्टियर की एक्ट कर कि जैसे ही एक्ट करके दिखाता है कि जाओ, मेरे पास टाइम नहीं है एंड मैं बिज़ी हूँ, दूसरे स्ट्रीट में जाओ। एंड इज शोइंग disagreement at that act of Gaultier. Okay, so he spits. Jean says, never mind about that. Listen, I say directly I am gone. Go up to the door and knock on it. The lady will come to the door. So उसने कहा कि कोई बात नहीं है, अब भी मेरी बात सुनो, जाओ और जैसे ही नॉक करोगे वहाँ से एक लेडी नजर आएगी। बट हाउ डू यू? Don't interrupt. The lady will come to the door. When she does so, you will take her hand and kiss it. Kiss the lady's hand? I think you are making a slight mistake, brother. I am not lovesick. I am starving. Right? So उसने कहा, बताया कि क्या करना है। एंड ही ऑल्सो सेड कि डिस्टर्ब मत करो, इंटरप्ट मत करो। तो वहाँ पर एक लेडी आएगी, आपको उसका हाथ पकड़ना है और उसे किस करना है। सो पियरी सेड कि लेडी हैंड को मैं किस करूँ? मैं कोई लव सिक नहीं हूँ, मैं जो हूँ मैं स्टार्व कर रहा हूँ, मैं भूखा हूँ। सो थिंक ऑफ फूड एक्चुअली। वेट, दैट्स नॉट एट ऑल। When you have kissed her hand, you will say, Madam, I am sent by Mr. Gaultier to fetch the pie. She'll then give you a large eel pie and सो उसे बताता है कि कुछ बस इतना ही नहीं, जब तुम उसके हैंड को किस करोगे उसके बाद उससे कहोगे कि मैडम मुझे मिस्टर गॉल्टियर ने भेजा है पाए लेने के लिए। एंड उसके बाद वो तुम्हें एक बड़ा सा पाए दे देगी, और मीन्स इज़ थिंकिंग ऑफ दैट कि मिलने के बाद वो उसे खाने वाला है, राइट। सो बड़ा एक्साइटेड फील होगा उसे। पियरे सेड, एंड द हेवन विल ओपन, रोस्ट फाउल एंड nectarines will seem to rain upon us from the clouds, and champagne will be heard gurgling in the gutters. Where did you learn this conjuring trick? So, actually, जो प्यारे हैं, okay, उसे पता नहीं है कि क्या किया हुआ है, सुना हुआ है उसने कुछ। एंड ही सेड कि रियली, मतलब उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा ये कि आसमान से खाने की चीज़ें गिरेंगी, रोस्टेड फाउल गिरेगा, नेक्ट्राइन्स गिरेंगी और क्लाउड्स उन्हें बरसाएंगे। फिर शैम्पेन जो है वो गटर में बहती हुई नज़र आएगी। एंड इसे कि कहाँ से ये कंजरिंग ट्रिक तुमने कहाँ से सीख के आया हुआ है? बिकॉज उसे लग रहा था कि वो जस्ट इमेजिन कर रहा है, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। सो ही वॉज थिंकिंग दैट ही इज़ क्वाइट गोइंग टू बी मैड नाउ। भूख की वजह से उसका दिमाग ही ख़राब हो गया है। Well, very well, I believe it. Sorry, believe it or not, as you like. The point is, are you hungry or are you not? तो उसने कहा कि ठीक है, बिलीव करो या ना करो कोई मतलब नहीं है, पॉइंट ये है कि तुम भूखे हो या नहीं हो। सो Pierre rubbing his waistline, hungry. I have hollow in here, and that all the words of the air could nest in. So वो अपने स्टमक के ऊपर हाथ घुमाते हुए बोलता है दैट हंग्री, इतना बड़ा हॉलो है, इतना बड़ा हॉलो है मेरे पेट में कि सारे के सारे वर्ड्स जो हैं वो एयर के, वो अपना नेस्ट यहाँ पर बना सकते, मतलब पूरी तरह से मेरा पेट खाली है। देन डू एज आई टेल यू, इफ़ इट डजेंट कम ऑफ नेवर ट्रस्ट मी अगेन, बट इट विल। सो
उसके बाद वो बोलता है कि एक बार मेरी भरोसा करो, ऐसा होगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो कभी भी फिर लाइफ में तुम मेरा भरोसा नहीं करना, राइट? सो Criminy, Jean, I believe you are serious. Of course, I'm serious. All right, I'll do it. Good. So he said कि okay, मैं तुम्हारा बिलीव करने जा रहा हूँ, and I feel that you are really serious, and मैं करने वाला हूँ जो तुम मुझे बता रहे हो. Tell me again, what do I have to do? Then he asked कि फिर से एक बार बताओ मुझे क्या करना है. It's all quite simple. Go up and knock the door and say, please, madam, Mr. Gaultier has sent me for the eel pie. She won't give it to you till you have kissed her hands. That's important. तो उसने बताया कुछ नहीं, आपको नॉक करना है और उसके बाद कहना है, मैडम मुझे मिस्टर गॉल्टियर ने भेजा है ईल पाई लाने के लिए, एंड डोंट फॉरगेट कि आपको हैंड को किस करना इम्पॉर्टेंट है, उसके बिना शायद ये नहीं मिलेगा. बट सपोज द हस्बैंड कम्स टू द डोर. देन पियरे आस्क्ड कि अगर हस्बैंड आया तो. देन जीन सेड he won't, he is out. I happen to know it, never mind how, but I do. Now I'm going round the corner. I shall be back in 5 minutes, and you start dinner till I come. Okay, so उसने कहा ठीक है, वो अभी घर पर नहीं है इसलिए वो तो नहीं आएगा, एंड ही इज़ आउट. मुझे पता चला, कैसे पता चला, इट डजेंट मैटर. ओके, एंड अभी मैं जा रहा हूँ और 5 मिनट्स में बैक होऊंगा मैं, एंड तब तक डिनर मत स्टार्ट कर देना. मीन्स ही वॉज क्वाइट श्योर कि उसे इल पाई मिल ही जाएगा. एंड ही एग्जिट्स. पियरे स्टार्ट्स टू नॉक एट द डोर, एंड मैरियन जो है उसको आंसर करेगी. पियरे, गुड मॉर्निंग लेडी, I have come from Mr. Pye, who sends me to fetch the Gaultier. I should say, I come from Mr. Gaultier, who sends me to fetch the pie, the eel pie. So क्योंकि उसे थोड़ा सा डर लग रहा है, सो स्टार्ट करता है जैसे ही प्यारे बोलना. वो कहता है मुझे मिस्टर पाए ने भेजा है गॉल्टियर को लेने. देन वो नहीं, मुझे कहना है मुझे मिस्टर गॉल्टियर ने भेजा है ईल पाई को लेने के लिए. एंड हाउ आई टू नो यू आर हिज मैसेंजर. सो मैरियन आस्क्ड कि कैसे पता चलेगा मुझे कि तुम उनका मैसेंजर हो. ओ, kindly allow me lady to kiss your hand. Okay, so वो प्यारे जो है ही सेज कि आप एक काम करिए, आप अपना हैंड मुझे दिखाइए. So I am going to kiss it. He attempts to seize her hand, but Marion snatches it away. So here is the word coyly. So word coyly means showing the lack of self-confidence, right? तो वो hesitate हो रहा था, but when he seized the hand, Marion उसे snatch कर लेती है, खींच लेती है. All right, that will do. Wait there, I'll get it. सो कहती है ठीक है, एंड इतना ही काफ़ी है. उसके बाद वो जाती है किसके लेने के लिए, इल पाई को लेने के लिए. एग्जिट एंड रीअपियर्स विद पाई. सो इसे लेकर आती है, एंड हियर इट इज़, टेक केयर हाउ यू कैरी इट, इट्स वेरी गुड पाई. और इसने कहा कि इसे ले जाते हुए बहुत केयरफुल होना क्योंकि ये बहुत अच्छा पाए है. प्यारे, रेस्ट अस्योर्ड लेडी, I shall take the greatest care of it. As a carrier of eel pie, I claim to be second to none or in all Paris. उसने कहा कि नहीं, आप भरोसा रखिए, मैं उसे बहुत केयर से लेकर के जाने वाला हूँ, और ईल पाए के कैरियर के रूप में तो मुझे आप पेरिस में सेकंड नंबर पे ले सकते हैं. ओके, यानी मैं बहुत ही केयरफुली उसे लेकर के जाने वाला हूँ. I shall travel thus close to my bosom, as a mother with her bantling, as a shepherd with her ewes, and as Saint Ursula with her maidens, so will I play the guardian angel with that pie. It shall. So now he starts उसे
इतना एक्साइटेड हो गया है ईल पाई मिलने से कि उसने कहा मैं जब ट्रैवल करूँगा, मैं जाऊँगा तो जैसे माँ अपने बैंटलिंग को, अपने बेबीज़ को लेकर के जाती है अपने मौसम से लगाकर, ठीक है, अपने दर से लगा करके मैं वैसे लेके जाऊँगा। जैसे सेफर्ड अपने उसको लिया रहता है, मैं वैसे उसको लूँगा। एंड जैसे सेंट उर्सला अपने मेडन्स के साथ बहुत केयरफुली होती है, वो मैं वैसे ही इस ईल पाई के लिए एक गार्जियन एंजल की तरह काम करूँगा, इसकी रक्षा करूँगा। बी ऑफ दैन एंड डोंट वेस्ट टाइम इन गेटिंग देयर। सो मैरियन से इसकी जल्दी करो और यहाँ पर खड़े होकर टाइम वेस्ट मत करो। सी क्लोजेस द डोर आफ्टर सी हैज़ गॉन। Pierre stand holding the pie as it stupefied. He then places it carefully on the bench and sits beside it. He gazes it lovingly, prodding it now and then with his fingers. So जैसे ही वो जाती है अपने हाथ में वो इल पाई लेके स्टॉपिफाइड फील करता है, उसे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा है, राइट। उसे एक्चुअली वो सक्सीड हो गया है, इट वॉज़ अ ड्रीम फॉर हिम। तो बड़ी केयरफुली वो बेंच पर ले करके जाता है, रखता है और उसके बाजू में बैठ करके इमेजिन करिए एक हंग्री पर्सन जिसे लग ही नहीं रहा था मिल रहा है और कोई भी चीज़, एंड उसे ईल पाए मिल गया है, तो वो बड़ा प्यार से उसे बेंच पर रखा हुआ है और उसे गेज़ कर रहा है, देखे जा रहा है एंड बार बार उसे टच करता है वो अपने हैंड से एंड जस्ट ट्राई टू फील कि सच में उसे वो ईल पाई मिल गई है। दिस मस्ट बी ड्रीम एंड प्रेजेंटली आई शैल वेक। वन ऑफ दोज ड्रीम दैट आर टू गुड टू लास्ट, आई नो बिकॉज आई हैव हैड दैम once or twice before. Picking up the pie tenderly and sniffing it. Good dream. Last a minute longer. Just now, I haven't the very least desire to make up. So, इसे इसकी ऐसे लग रहा है कोई सपना है और मुझे अभी जागना है, बट ये जो ड्रीम है बहुत लंबे नहीं होते, जो बहुत अच्छे होते हैं ड्रीम वो बहुत लंबे नहीं होते, मैंने कई बार ऐसा फील किया है। एंड देन उसके बाद उसने क्या, उस ईल पाई को पिक किया और स्निफ किया, सूंघ रहा है उससे, ठीक है। एंड ही सेड कि गुड ड्रीम, बहुत अच्छा ड्रीम है। एंड मैं डिज़ायर ही नहीं करता हूँ कि ये ड्रीम, ये सपना मेरा टूटे और मैं उठ जाऊँ। तभी वहाँ पर जीन का एंटर होता है। सो वी सा दैट कि दोनों थग्स जो हैं दे आर क्वाइट क्लेवर एंड कैसे ओवर हियरिंग ने उनको फ़ायदा कराया एंड दे गॉट द ईल पाई। नाउ वो अपनी हंगर को जो है वो सेटिस्फाई कर सकते हैं, अब वो उनको खाने को मिल जाएगा। एंड they knew about the tart also, so in the next video we'll know ki how they will be able to get that tart also. Okay, तो pie and tart जो है वो बेकरी आइटम्स है जो कि बेकर्स बनाते हैं। तो अभी ईल पाई तो उसे मिल गया है, अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी कि कैसे उन्हें टार्ट भी मिला है। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।